Hello friends, today we discuss another new topic, solution of simultaneous linear equation. Before we start, please share and subscribe my channel. Now we start the solution of simultaneous linear equations. Consider an simultaneous equation with n variables. Means we have n simultaneous equations with n variables. Variable variable have any value. First equation a11 x1 a12 x2 a1n xn equal to b1. Here a11 is some constant, x1 is a variable, a12 is some constant, x2 is another variable, a1n is another constant, xn variable is b1 equal to b1. This is first equation. Similarly, second equation denoted equal to b2 and nth equation denoted equal to bn. Now represent these equation in matrix form. Means इन्हां equations ਨੂੰ ਆਪਾਂ matrix form 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ. First equation ਦੇ coefficient a11 a12 approaches to a1n and similarly second equation the constant a1 a12 a22 a2n. Similarly nth equation the constant a11 n12 and amn. ये अपने को एक मैट्रिक्स बन गई whose order is n. And second side all variables x1 x2 xn equal to first equation variable constant b1 and second equation constant b2 and nth equation bn. एक ही बन गया अपने को एक कॉलम मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर की है n क्रॉस 1. कोफिशिएंट मैट्रिक्स ਨੂੰ denoted by a and variable matrix is denoted by x and constant matrix is denoted by b. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ a x multiply equal to b. Now solution of linear equation has two types. First is homogeneous and second is non-homogeneous. Today we discuss non-homogeneous equation. First we learn to find homogeneous equation is a homogeneous equation or non-homogeneous equation. To see that if b matrix ऊपर जी आप फाइंड करिए b मैट्रिक्स ये b मैट्रिक्स इक्वल टू नॉन जीरो होवे means that not all elements equal to 0, then system of equations ax equal to b is non-homogeneous. System of equations की है non-homogeneous. Now next step, now we check the determinant a not equal to 0. ऊपर जी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी सी a ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ डिटर्मिनेंट चेक करांगे. If a not equal to 0, then system of has a unique solution and given by x equal to a inverse b. The system ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ unique solution ਹੋ particular solution which is equal to x equal to a inverse b. Now next step, if determinant a not equal to 0 means that determinant not equal to 0, that we have two cases. Adjoint a multiply b matrix not equal to 0, adjoint a multiply matrix b equal to 0. First case, adjoint matrix a multiply b not equal to 0, then system of equations inconsistent and has no solution. Then equations of the has inconsistent not proper
एंड हैज़ नो सोल्यूशन भी कोई भी मीन्स कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करूँगा। थर्ड प्रो इफ़ एडजॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो ऊपर की सी नॉट इक्वल टू जीरो नीचे की है इक्वल टू जीरो थर्ड केस च द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन मीन्स दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट बन जू ऊपर की सी इनकॉन्सिस्टेंट जो नॉट इक्वल टू जीरो सी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मीन्स दैट सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करनगे परंतु ਉਹ नेचर च की है एक तो ज़्यादा होंगे इनफाइनाइट काउंट नहीं कर सकते आप उन्होंने। नाउ सी एग्जाम्पल वी हैव गिवन 3 इक्वेशनस फर्स्ट इक्वेशन सैकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन अपने को कितनियां 3 इक्वेशनस ने इन्हां च वेरीएबल किहड़े है एक्स वाई जेड 3 वेरीएबल्स है एक्स वाई जेड। ऑप्शनस की अपने को की होगा यूनीक सोल्यूशन हो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो नो सोल्यूशन हो एंड नन ऑफ अबव हो। यूनीक सोल्यूशन लिए की अपने को डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन लिए की अपने को डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू जीरो। नो सोल्यूशन लिए की डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो डॉट फिर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि सैकेंड केस। आप इन्होंने इक्वेशनों की लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म च लिख लिया पहले दी की इक्वेशन तो मैट्रिक्स बनी 3 -1 2 कोफिशिएंट लिख लियो। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट की है एक्स का कोफिशिएंट 3 वाई का कोफिशिएंट की है -1 जेड का कोफिशिएंट की है -2 एंड बी की है इक्वल टू 2। सिमिलरली लिख लिया अपने एक्स का कोफिशिएंट की लिखा 3 वाई का कोफिशिएंट -1 जेड का कोफिशिएंट -2। सिमिलरली सैकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट सिमिलरली थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट 3 -5 0 वेरीएबल लिख ले एक्स वाई जेड तो इस तो बाद कोफिशिएंट ऑफ बी मैट्रिक्स दे लिख ले 2 -1 3। अपने को एक ही आ गई ए मैट्रिक्स विच इज मेड फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशंस एक्स मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ द वेरीएबल ऑफ एक्स वाई जेड बी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ सम इक्वेशंस। हुण आपां नूं बी नॉट इक्वल टू जीरो आल एलीमेंट्स ऑफ आर बी आर नॉट जीरो दैन सिस्टम की बन गया अपने को नॉन होमोजीनियस बन गया। हम आप फर्स्ट ऑफ ऑल की करेंगे चैक द डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें अपने को आ गया जीरो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने दे अपने को आ गया रिजल्ट जीरो विच इज सिंगुलर मैट्रिक्स। हम डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया अपने को फर्स्ट केस तो खत्म हो गया यूनीक सोल्यूशन वाला अगे की रह गए 2 केस यानी कि नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इन्हों जो अपन पता करने लिए आप अगे की कराया ना एडजॉइंट कढ़िया एडजॉइंट ऑफ ए कढ़ने लिए अपने की करे एक शॉर्ट ट्रिक यूज करी मैट्रिक्स नूं सेम है लिख लिया फर्स्ट कॉलम सैकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। इस तो बाद की करे आपने फर्स्ट कॉलम नूं रिपीट करता सैकेंड कॉलम नूं रिपीट करता फर्स्ट कॉलम रिपीट करा 3 0 3 एंड सैकेंड कॉलम रिपीट करा -1 2 -5। इस तो अगे की आपने करा फर्स्ट रो नूं रिपीट करता 3 -1 2 3 -1 फिर सैकेंड रो नूं रिपीट करता 3 0 2 -1 0 2। इस तो बाद आपने की करा इसका आप एडजॉइंट फाइंड आउट करना फिर आप इसका फर्स्ट रो ते फर्स्ट कॉलम कट करता। नाउ वी फाइंड एक्सपैंड थ्रू द कॉलम एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ रोज मीन्स
ਆਪਾਂ ਕੋਲਮ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰੋਜ਼ 'ਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ। फर्स्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करें 2 मल्टीप्लाई 0 -5 मल्टीप्लाई -1 रिजल्ट क्या आ गया -5। सॉल्व कर रहे हैं कॉलम नहीं, लिख रहे कि हैं रो फॉर्म च। सिमिलरली -5 मल्टीप्लाई -2 इक्वल +10 -1 मल्टीप्लाई 0 0 +10 आ गया रो फॉर्म च लिखता। सिमिलरली 5 फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, फिर सेकंड रो कर ली, फिर थर्ड रो अपने को एडजॉइंट निकला है मैट्रिक्स का। एडजॉइंट क्या है अपने को फर्स्ट रो -5 10 5, सेकंड रो -3 6 3, थर्ड रो -6 12 6। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਾइंड करना जी एडजॉइंट A मल्टीप्लाई B। ਆਪਾਂ एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख ली, बी मैट्रिक्स जी उपर फाइंड आउट करी से वो लिख ली। इस तो बाद अपन इन्हों सॉल्व करिया, सॉल्व करने तो बाद अपन रिजल्ट की मिल गया -5 -3 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हम अपने को केड़ा केस बन गया, सैकेंड केस बन गया, जिस की से अपने को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सल्यूशन, तो इक्वेशन की होणगियां इनकंसिस्टेंट। थैंक्स फॉर लिसनिंग, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।